So here is equation a square minus 5a plus 6 of I and the matrix A is equals to 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0. We need to prove that find the value of the equation. जब हम a की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन कंप्यूट करने के बाद जो भी आंसर बनेगा वो हमें बताना है. द वेरी फर्स्ट वी नीड ए स्क्वायर. ए स्क्वायर को हम इस तरह से 2 0 1 2 1 3 and 1 minus 1 0 multiply itself 2 1 3 1 minus 1 0 मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 ज़ा 4 0 1 4 plus 1 5 2 0 0 1 the 0 and 1 minus 1 the minus 1 2 1 the 2 0 3 the 0 1 0 the 0. So only 2. The rest of entries are 0. Again the second row with the first column 2 1 2 to the 4 again 2 1 the 2 and 3 1 the 3 3 to 5 5 plus 4 9. Next 2 0 the 0 1 1 the 1 and 3 minus 1 into the minus 3 plus 1 minus 2 minus 3 में से plus 1 हुआ minus 2. next 2 1 the and 1 3 the and 0 3 plus 2 5. third row first column 2 1 the 2 2 minus 1 the 2 minus 2 and plus 2 minus 2 and 0. the entry is 0 1 0 the minus 1 the and 0 the minus 1 1 1 the minus 3 minus 2. सो ए स्क्वायर हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आई 5 minus 1 2 9 minus 2 5 0 minus 1 minus 2. See the equation a square 5 of a plus 6 of I. The value of a square 5 minus 1 2 9 minus 2 5 0 minus 1 minus 2 a. The value of a 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0 plus 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is 5 2 5s are 10 with this minus 6 1 the 6. next minus 1 0 and again 0. third one 2 5 on the 5 with minus sign and 6 0 the 0. next one 9. this is 5 2 the minus 10 6 0 the 0. next minus 2 minus 5 6 1 the 6. third one 5 5 3 the 15 and 6 0 the 0. this is 0 and minus minus plus 5 and 6 0 the 0. the second one minus 1 plus 5 0. third one minus 2 0 and plus 6. now the final answer is 6 plus 5 11 minus 10 is 1. here second minus 1 and minus 3. next one 10 minus 10 plus 9 minus 1. this is 5 plus 2 7 minus 7 plus 1 minus 1. this is minus 10 10 minus 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 minus 1 is 4
6 minus 2 is again 4. So this become the answer. Please check the answer. यहाँ पे अब हमको क्या करना है, मैट्रिक्स ए गिवन है तो उसके साथ में इक्वेशन भी है, अलजेब्राइक इक्वेशन बना के रखी हुई है इन मैट्रिक्स। तो हमें लास्ट क्वेश्चन की तरह ए क्यूब निकालना, ए स्क्वायर निकालना, ए की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू आइडेंटिटी है, डालकर हमें ये कैलकुलेट करने के बाद आंसर जीरो बनना चाहिए। सो ये ऑलमोस्ट इसका आंसर मालूम ही है, तो ये बड़ी केयरफुली ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि एक भी एंट्री गलत हुई तो जीरो नहीं मिलेगा हमें। यहाँ पे आ गया फर्स्ट ए क्यूब के लिए हमें क्या करना होगा, पहले ए स्क्वायर, फिर जो ए स्क्वायर निकलेगा उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले ए की तरफ टेलीफोन के नंबर की तरह लगता है ना। सो सी 1 0 2 to the 4 plus 1 5, next 0 0 0 0 2 on the 2 0 and 3 to the 6 plus 2 8। तो ये फर्स्ट वन आया आपके पास फर्स्ट रो। सेकंड रो की तरफ ये 0 ये भी 0 and 2 on the 2, this is 0, this is 2 to the 4 and 0 only 4 0 2 0 the 0 2 1 the and 1 3 the 3 plus 2 5 2 1 the 2 and 0 and 6 6 plus 2 7 8 okay 0 0 and 0 2 to the 4 0 3 3 9 9 9 4 13। आगे चलते हैं ए क्यूब की तरफ। ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए, द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर अभी निकाली हमने 508 2 4 5 8 0 13 एंड विद ए ओरिजिनल मैट्रिक्स 1 0 2 2 0 2 1 2 0 3। ये बन गया आपके पास 5 1 सा 5 0 and 8 to the 16 16 plus 5 21। next is your 0 0 and 0 5 to the 10 0 1 the 0 8 3 the 24 24 plus 10 24 plus 10 34। next is your 2 on the 0 5 to the 10 10 plus 2 12, this is 0 4 to the 8 5 0 0 8। third one 2 to the 4 4 1 the 4 and 5 3 the 15 15 plus 4 19 19 plus 4 23। the last row 8 ones are 8 and 8 ones are 8 0 the and 13 to the 26 34। next one 8 0 the 0 the and 13 0 the, this becomes 0। next is 8 to the 16 0 and 13 3 the 39, this is 55। so a cube comes out 21 0 34 12 8 23 34 0 55। अब चलते हैं इक्वेशन की तरफ। नाउ द इक्वेशन इज ए क्यूब, जिसका आंसर हमें 0 बना के दिखाना है। ओके, very first the value of a cube is 21 0 34 12 8 23 34 0 55 minus 6 of
a square is this one 7 of a and the last 2 of I इनको क्लब करते हैं 21 माइनस 30 प्लस 7 2 on the 2 ये फर्स्ट वन नेक्स्ट 0 0 0 and 0 next 34 8 चौके 48 7 to the 14 and 0 next 12 0 0 next 8 24 14 plus 2 third one 23 पंचुची गति 5 6 the 30 7 1 the 7 plus 0 34 6 8 the 48 7 to the 14 the last one 0 0 0 0 0 55 13 6 the 78 7 3 the 21 and last plus 2 now end let's see the end is 0 0 0 or not this is 7 8 9 9 plus 21 30 30 minus 30 0 it's 0 34 plus 14 is 48 48 minus 48 is 0 12 minus 12 0 this is 14 8 plus 2 10 10 plus 14 24 24 minus 24 0 23 plus 7 30 minus 30 0 14 plus 34 48 48 minus 48 0 this is again 0 this is 21 21 plus 2 plus 55 5 6 7 8 and 7 yes 78 plus 78 minus 78 is 0 so hence after calculating with the help of entity 1001 there is given equation a square is equal to k of a minus 2 of I by using these two matrix in this equation we need to find the value of k हमें k की वैल्यू निकालनी है इन सब का इस्तेमाल करके सो a स्क्वायर चाहिए अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वी नीड a स्क्वायर तो इसकी वैल्यू निकाल के रख लेते पहले द वैल्यू ऑफ a 3 minus 2 4 minus 2 9 8 6 4 12 minus 8 minus minus plus 2 to the 4 1 minus 2 4 minus 4 कम टू द इक्वेशन के की वैल्यू को निकालने के लिए सीधा हम इक्वेशन की तरफ
रुक करते हैं एक ए स्क्वायर की वैल्यू दिस वन के एज इट इज द वैल्यू ऑफ ए 3 -2 4 of -2 1 0 0 1 1 -2 4 -2 3k minus of 2k 4k 3k -2 and only -2k from here 4k 1 -2 ये नॉर्मल अलजेब्रा से थोड़ा हट के चलता है। ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है। इसमें क्या है कि वो कहता है इक्वल है तो यू शुड टेक केयर ऑफ ईच एंट्री, कि ईच एंट्री से के की वैल्यू सेम निकलनी चाहिए, राइट। सो फ्रॉम हियर फर्स्ट 3k -2 विच इज इक्वल टू यहाँ से 3 येस द वैल्यू ऑफ k 1 -2k इज इक्वल टू -2 यहाँ से भी वैल्यू ऑफ k 1। अगर हम बिल्कुल सही हैं तो चारों को चारों जो एंट्रीज हैं वहाँ से हमें क्या k की वैल्यू सेम निकलेगी। फ्रॉम हेयर नेक्स्ट 4k इज इक्वल टू 4 येस द वैल्यू ऑफ k अगेन 1 एंड द लास्ट वन 2k -2 इज इक्वल टू -2 2k। यहाँ से क्लियरली द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पे हमने मिस राइट किया -2 के साथ। ये हल्की सी गलती भी हमें कहीं और लेके जा सकती है। सारा क्वेश्चन या सारा आंसर हमारा चौपट हो जाएगा। -2 इज इक्वल टू -4 yes again the value of k is equals to 1 after calculating all the 4 entire matrix से हमें जो k की वैल्यू मिल रही है वो 1 मिल रही है। टी रेशो टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट अल्फा बाय 2 डिजाइन आपके सामने है, ये शो करके दिखाना। इसमें आई आइडेंटिटी का काम कर रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ वेरी इजी। इसको LHS RHS की तरह सॉल्व करते हैं। RHS थोड़ा बड़ा है तो पहले RHS ले लेते हैं। RHS which is equal to I minus A and the rest matrix is cos alpha sin alpha। आंसर बनाने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड जो बनेगी वो हाफ एंगल में बनेगी और राइट साइड जो बन रही है फुल एंगल में बन रही है अल्फा में। तो इसका मतलब हमें ये सारा कुछ जो भी राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं धीरे धीरे इन सबको हाफ एंगल में लेके जाना पड़ेगा। तो ये लेंथी होने वाला है 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी विद दिस वन 0 टेंजेंट अल्फा बाय 2 0 ब्रैकेट क्लोज एंड इसको भी अभी चाहे इस स्टेप में चाहे अगले स्टेप में हाफ एंगल तो करना ही पड़ेगा। तो आप फिलहाल इसको अल्फ़ा में रहने दो क्योंकि बार बार इतना लंबा नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट में लेके चलते हैं इसको। दो मैट्रिक्स 1 यहाँ पे माइनस ऑफ टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 हियर माइनस ऑफ टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 1। यहाँ पे कॉज अल्फ़ा इन हाफ एंगल में क्या जाता है, कॉज ऑफ अल्फ़ा इन हाफ एंगल विच कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 एंड साइन हाफ एंगल में जाता है 2 नेक्स्ट हियर फिर से साइन विच इज इन हाफ this one and cos alpha same वही value cos square alpha by 2 minus this is 1 into 1 multiply by this, ये 1 ही रहेगा
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। इसको यही मैनिपुलेट कर लो, बेटर रहोगे, नहीं तो आप खोल के भी कर सकते हो। दिस इज टेंजेंट अल्फ़ा, दिस वन प्लस माइनस का बीच में माइनस रहेगा और साथ में टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 है, यहाँ पे 2 साइन अल्फ़ा। यहाँ पे देखो जब टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 एंड कॉस अल्फ़ा बाय 2। ये यहाँ पे कैलकुलेशन बाहर ही कर देता हूँ ताकि अंदर लिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा बन जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, टेंजेंट को ओपन कर लो साइन बाय राइट इसमें, तो इससे मिलेगा क्या और कटेगा क्या। आप देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो ये 2 साइन अल्फ़ा बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। तो जब 1 ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और माइनस टेंजेंट जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर ये माइनस नहीं बनना चाहिए, ये प्लस में बनना चाहिए था। तो हमारी गलती कहाँ पे, स्टेटमेंट लिखते वक्त हमने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, राइट। तो ये माइनस का इम्पैक्ट यहाँ भी दिखेगा और ये माइनस माइनस ये प्लस बनेगा, यानी ये प्लस में एंट्री रहेगी। और फाइनली ये टेंजेंट और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर जो ये 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 बना पर प्लस में बनेगा। ये हमें इसलिए पता लगा क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी बननी चाहिए, तभी 1 तक पहुँचेंगे हम। नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा 1 इंटू दिस वन, ये एज इट इज़ 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2, 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, टेंजेंट मल्टीप्लाई अल्फ़ा बाय 2 मल्टीप्लाई विद दिस वन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको साइन अल्फ़ा बाय 2 एंड कॉस अल्फ़ा बाय 2। जो ये प्रेजेंटेशन हम इसके लिए बना रहे हैं ना, यहाँ पर भी सेम टू सेम प्रेजेंटेशन बनेगी। तो 1 टाइम एक बार करके सारा रिजल्ट हम कॉपी कर लेंगे एज इट इज़। तो साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, पहले कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये टेंजेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक काम करो, इसको यहाँ मत खोलो, आप देखो ध्यान से देखना मैंने क्या किया। ये टेंजेंट जब इसके साथ मल्टीप्लाई होने लगा तो मैंने इसको खोल दिया साइन बटा कॉस, और इसके साथ मल्टीप्लाई करते वक्त मैंने इसको टेंजेंट ही लिख दिया। उसकी वजह ये कट गया एंड व्हाट आई लेफ्ट, जो ये क्वेश्चन मुझे जैसा देखना है ना मैं इसको वैसे ही लेके चल रहा हूँ। इसलिए ये कैलकुलेशन मैं रफ में तुम्हें साइड में करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें ये सारा कुछ पेपर में एग्जीक्यूट करना सिर्फ इतनी सी जगह पे। तो यहाँ पे हमारी बात चल रही थी दिस रो मल्टीप्लाइंग दिस कॉलम, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये आया, और इसको हमने जो मल्टीप्लाई यहाँ पर परफॉर्म करके ये इसको यहाँ पे लिखूँगा मैं, एंड व्हाट विल बी इट, दिस विल बी साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 साथ में माइनस टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। ये पैक हो गया यहाँ पे, राइट। अब आगे चलते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर से देखिए ये टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 सेम टू सेम इसके साथ चल रहा है, बस यहाँ पे एक माइनस का फ़र्क आ गया। तो माइनस को एडजस्ट करके हम लोग क्या करेंगे, विल ट्राई माइनस के सेम वैसे ही होगा कि माइनस की एडजस्टमेंट कर देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो फर्स्ट टर्म माइनस में बन जाएगी, सेकंड टर्म प्लस में बन जाएगी अकॉर्डिंग जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, राइट। यही इम्पैक्ट पड़ेगा माइनस का। तो यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज करके एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं, ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। बिकॉज ऑफ दिस माइनस, ये माइनस में बना, ये प्लस में टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, और साथ में देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये टर्म बन गई, और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है साथ में +2 साइन अल्फ़ा बाय 2
कॉस अल्फा बाय 2। ये फर्स्ट एंट्री ऑफ सेकेंड रो। अब फिर से ये जो आपकी रो है इस कॉलम के पास जाएगी, यहाँ पे टेंजेंट अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आप ध्यान से देखिए माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। ये टेंजेंट आपका साइन बटा कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर बनेगा। ये सेम टू सेम जो चीज़ हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट की थी ना, वो सेम टू सेम यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है। तो थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाके आप देख सकते हो ये किस तरह से बना था, वैसे यहाँ पे ये बन रहा है। अब दिस टेंजेंट मल्टीप्लाई विद दिस विल गेट 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये सारी की सारी चीज़ यहाँ पे कॉपी करते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 माइनस ये आपका प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 बन गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। यहाँ देखिए -2 एंड +1 बचा, माइनस ऑफ साइन अल्फा बाय 2 कॉस ऑफ अल्फा बाय 2, साथ में ये माइनस ऑफ टेंजेंट और साथ में साइन स्क्वायर, माइनस ऑफ टेंजेंट एंड साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। आगे चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये प्लस, इससे ये कैंसिल होने के बाद प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा बच गया, साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, साथ में ये प्लस का टेंजेंट अल्फा एंड साइन स्क्वायर। ओके यहाँ पर आओ, फिर से 2 में से 1 गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बच जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। इसको थोड़ा सुधारना है, इसको थोड़ा सा इस ढंग से सुधारेंगे ताकि ये जो भी हम LHS बनाएंगे ना वो उसके साथ मैच कर जाए, राइट। तो यहाँ पर जो है माइनस ऑफ साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 है, टेंजेंट अल्फा बाय 2 एंड साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। एक काम करो माइनस टेंजेंट, क्योंकि मुझे आंसर में टेंजेंट अल्फा बाय 2 चाहिए आंसर में, तो मैं टेंजेंट को सिक्योर करूंगा बाय टेकिंग कॉमन, साथ में माइनस भी ले लेते हैं। टेंजेंट अल्फा बाय 2 ये बाहर आया क्योंकि इसके पास नहीं था, तो ये सारी की सारी टर्म टेंजेंट अल्फा बाय 2 से डिवाइड हो जाएगी, प्लस राइट माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2। अब देखते हैं अंदर क्या बचा क्या कटा। ये टेंजेंट है, दिस टेंजेंट अल्फा बाय 2 विल टर्न अप, इस टेंजेंट को आप क्या लिख लो, साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, राइट। और एक काम करो, इसको रिवर्स कर दो, ये डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर के पास चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा अंदर ही अंदर, ये कॉस इंटू कॉस, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन से साइन कट जाएगा। सो हमारे पास माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2, यहाँ पर सिर्फ कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये बचा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, बाहर माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 है और इसकी आइडेंटिटी 1 बन गई। तो इसका मतलब इस सारे को अगर आप सही ढंग से कंप्यूट करते हैं तो व्हाट विल बी वी हैव इन द क्रक्स माइनस ऑफ टेंजेंट अल्फा। सिमिलरली इसको भी परफॉर्म करो, बिकॉज सारा क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर माइनस था कॉमन लेने के लिए तो माइनस कॉमन आ गया, यहाँ पर माइनस कॉमन लेने के लिए नहीं है तो नहीं आएगा, तो बाकी की सारी कैलकुलेशन एज इट इज, मतलब लास्ट में प्लस का टेंजेंट अल्फा बन जाएगा और साथ में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी 1। सो ये हमारे पास आई है हमारी RHS को, जो हमने पूरी तरह से सॉल्व किया है।
उसका आंसर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा